Hi, everyone, and welcome to our podcast today. I have a very special person on my podcast today, and let me give you a brief introduction. फरजाना अली इज मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. काफी सालों से हमारी दोस्ती रही है. 8 years हो गए हैं माशाल्लाह. And Farzana works at a very reputable place right now, but alongside, she has this passion for animals. She is a very dedicated person जो animal care करती है, animal rescue करती है. And I felt that there's a lot she can share with us on this podcast. So let me ask Farzana this question. Do animals have feelings and the same rights as human beings? आपको इसके बारे में क्या कहना है? Hi everyone. Thank you so much, Mumana, for inviting me over here. Uh, I believe yes, because every living creature, including plants में भी feelings होती हैं, they breathe. तो animals में क्यों नहीं होगी? ऐसा सोचना कि they don't feel pain, they don't have any emotions, बहुत ही गलत है. Like we become mother, we become parent, father. ऐसे उनमें भी पेरेंट्स होते हैं, मदर होती है, फादर होते हैं, उनके बेबीज होते हैं, बेबीज मदर के साथ होते हैं. एंड यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टा. अब तक कितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं. You can even feel their love, their pain when they lost their babies or their loved ones. And even they sob for maybe for some animals for years they sob. So yes, they do have feeling. Yes. Have you ever witnessed any sobbing animal or Oh yes. Can It you tell was me my first क्या experience. हुआ था? Of course. It was my first experience. I guess it was 4 years back. I started feeding these stray Kit Kats, and then with them, stray dogs used to come and then eat cat food. So they actually overcome the cat food, and cats गायब हो गई और वो लोग आना शुरू हुए. उनके 9 babies थे. 9 babies थे, तो मदर को जरूरत थी खाने की. So I searched for that, and the easiest way to you produce the milk in a mother dog, you can give them bowl of water. Keep a bowl of water with them. So I used to keep bowls on different places so that she can find water whenever she is in need. So after I guess 1.5 or 2 months of feeding them, they become my friends. They used to come in my flower bed, and they used to all 9 puppies used to come and sleep in my अच्छा, तो flower bed. मतलब They have उनको खाना देने uh, से पानी देने से एक पहचान हो गई बेसिकली है ना. They started exactly. okay. Exactly. Even the puppies, they used to be very happy whenever I come from office, and they used to just run towards me with their big bums and then small tail, and then used to wag a lot. So Okay. it was not at all dangerous for me. Okay. But for some people in my in my lane, in my house lane, some people were threatened. Maybe they wanted to put this term threatened, but actually they didn't like them wandering around, running around on the street. They were like कि हमारी गाड़ी गुजरती है and we have to slow it down. So I mean, slowing your vehicle down for like a minute or two won't harm anybody, but Yeah. they don't have that heart. So eventually, one of my neighbor threw 5 puppies out of those 9, and the mother was devastated. Oh I my God. came from office. The mother was like waiting for me. She just ran towards me, and she was complaining. She was बतानी yelling a की lot. कोशिश She है. was Okay. हाँ वो अपने पाँव मेरे पास यहाँ रख के, and she was continuously trying to tell. मुझे पता लगा instantly कि last 15 minutes में ये उस वक्त बहुत fresh था. I was very scared. It was my first experience, as I told you. तो मुझे समझ में नहीं आया. मैंने उसको वहीं रखा. मैंने उसको समझाया. मैंने कहा बस मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं रुको. Then she sat over there as if that she understood my whatever I was saying. I ran to. I drove very speedily towards defense because I was living in somewhere else. At defense से मुझे सारे dog accessories मिल जाते हैं. मैंने उसका harness लिया, and then she was not coming. She wanted to wait outside the house. फिर मैंने उसके जितने बाकी पपीज बचे हुए थे, मैं उनको गोद में ले लेकर घर में डालना शुरू किया. 1 2 3 4th पपी जो था वो कहीं छुप गया because he must be scared. ममा पपी को देख कर जब ऊपर आई है, and then she was on my lap and she was sobbing. Oh. She sobbed for hours.
I could see her lower lips moving, and her eyes was full of tears, and I had to stay with her all night. It's so painful, na, seeing animals It was cry with tears and all. no, no, it's होती है not at बहुत all painful. okay. It's ये बहुत तकलीफदार बात होती है बिकॉज यू फील दैट ये क्रीचर बहुत डेंजरस है, ये क्रीचर हमें काटेगा, इस क्रीचर्स में जर्म्स होते हैं, ये तो गंदे हैं, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन शी वॉज जस्ट लाइक अनदर मदर. वो पूरी रात सॉल्व करा है उसने, अगले दिन उसने रोई है, उसके 3-4 डेज जब तक उसको करार नहीं आ गया कि उसके ये बच्चे हैं. अल्लाह मियाँ ने ये बड़े फॉरगिविंग होते हैं एनिमल्स, स्पेशली जो डोमेस्टिक एनिमल्स जिनको आप पेट कर सकते हैं. दे फॉरगिव इवन द सेम पर्सन उनको पैट करेगा ना, स्पेशली डॉग्स, वो उसको जो है ना, मेरी कैट मुझे करिए, उसको जो है वो इंस्टेंटली फॉरगिव कर देते हैं, एंड दे जस्ट स्टार्ट लविंग देम ऑल ओवर अगेन. ये आई विश कि ह्यूमन में ऐसी क्वालिटी होती. हम बहुत ही क्रूअल हैं. तो आई एक्चुअली विटनेस Muna कि वो she was sobbing and I could not sleep at that night. I managed food for them, whatever I had in my house. You know better कि I don't have I don't have things for me to eat, but for them I always try to make sure कि उनके लिए हो खाना. I know you always prioritize your pets. And yes, they sob. They have this pain. Okay, then that means that it is safe to say that animals kind of take us like their parents at the end of the day. You know, when we adopt them, Of when we course. take care of them, or even not necessarily adopt them, but just taking care of them, feeding them, उनको अगर हम सहारा दें, कोई रहने की जगह दें, तो eventually वो हमें अपने पेरेंट्स की तरह समझने लगते हैं ना. They get attached to us that much. Of course, even not, अगर कोई एक बंदा उसको शेल्टर नहीं दे सकता, उसको फूड रेगुलर नहीं दे सकता, लेकिन कभी कभी भी देता है ना, स्पेशली कैट्स और डॉग्स की मैं बात करूंगी. बाकी एनिमल्स भी ऐसे करेंगे, बट मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है उन लोगों के साथ. इवन डोंकीज बहुत ज्यादा लवेबल एनिमल है, वो बहुत ज्यादा अनकंडीशनल होता है. तो लेकिन इवन आप उसको बहुत रेयरली भी एक कभी खाना खिला देते हैं या पानी पिला देते हैं या इवन बहुत प्यार से पैट कर देते हैं, तब भी वो आपके दोस्त बन जाते हैं. एंड दे नेवर फॉरगेट एंड इवन दे ऑलवेज ट्रीट यू विद अ लॉट ऑफ अफेक्शन एंड लव. ऐसा नहीं करना चाहिए कि वी शुड एक्चुअली, मतलब देयर आर नो पैरामीटर्स कि हमने शेल्टर दिया, हमने फूड दिया, हमने पानी दिया तो वो दोस्त बनेंगे. आप उनको सिर्फ प्यार से पैट भी कर दोगे तो भी दोस्त बन जाएंगे. हाँ, ये तो सही है. बट व्हाट डू यू हैव टू से टू पीपल दैट मे बी जो डॉगीज को नहीं पसंद करते फॉर इस्लामिक रीजंस के वो नापाक जानवर है, एंड उसको स्टोन करेंगे, उसको हर्ट करेंगे. व्हाट कैन यू से टू देम? मतलब व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? I have a very different opinion for that. सबसे पहले हमें तो ये डेफिनेशन देखनी चाहिए कि व्हाट इज नापाकी. ठीक है, क्या कुत्ते के टच के अलावा आप पाक रहते हैं? नो. द आंसर इज नो. You have to offer wuzu all the time or whenever you are going for prayers, just to be sure कि आप पाक साफ हो जाएं. And before that you always make sure that आपके कपड़े पाक हो. अगर आप वॉशरूम की साइड से गुजर रहे हैं और छींटे पड़ गए तो आपके कपड़े नापाक हो गए. अगर आप सड़क पे गुजर रहे हैं और कीचड़ के छींटे पड़ते हैं तो भी आपके कपड़े नापाक हो गए. अगर आप किसी भी आपका खून निकलता है तो आप नापाक हो गए. आपने उसको वाइप करना है, देन आपने वुजू करना है. तो द पॉइंट इज दैट एनी लिक्विड इंस्टेड ऑफ वाटर, कोई भी लिक्विड होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ब्लड की बात की, कोई गंदे लिक्विड की बात करते हैं, ये टू बी वेरी प्रिसाइज, तो आप नापाक हो गए, तो आपने उसे वुजू करना है. अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि आप नमाज के लिए जा रहे हैं और कुत्ता आपको टच करके निकल गया, जस्ट टच, एंड द टच वाज ड्राई, चला गया. हाँ, एग्जैक्टली. हाँ, द टच वाज ड्राई तो आप नापाक नहीं है, लेकिन द टच वाज वेट तो आप नापाक है. So the parameter is that it needs to be wet. Okay. दूसरी बात ये कि कुत्ता, अभी हम बाहर की बात कर रहे हैं, जब हम बाहर निकल रहे हैं और कुत्ता आपको टच कर रहा है, यू शुड नो हाउ टू डील विद इट. जैसे कि आपके घर में कोई नया मेड आता है
तो आप उसको डील करने के लिए आप उसको 2-3 दिन देखते हो, समझते हो, उससे उसकी मतलब की बात करते हो, तो आपका जो मेड है वो समझ जाती है कि हाँ ठीक है, और आप भी समझ जाते हैं कि यार ये इससे मैं यूं कहूंगा या कहूंगी तो ये काम कर लेगा. You develop an understanding so that it will be benefited for you. Same goes for animal, any animal. आपको एनिमल को समझना पड़ेगा because we are the superior creatures, right? We should understand. We should not expect animal to understand. Animal can never understand. We have the intelligence. Animal does not have intelligence. Yeah, that's true. तो आप अगर फर्ज करें आपको पता है कि एक कुत्ता से आपको प्रॉब्लम है, try to go from a little far from that animal so that it won't get feeling that he is being attacked or he does not feel any type of threaten from that particular person, और आप निकल जाएं. फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि एक कुत्ता आपके लिए हार्मफुल है, या एक कुत्ता का बीइंग कुत्ता भी उसके लिए नुकसानदेह, क्योंकि वो कुत्ता है, उसका भी उसको कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ता है. तो आप कुत्ते को करीब आते ही आप भागना शुरू कर देते हैं. मुना तुम बताओ, अगर तुम्हारे करीब कोई भी बंदा आएगा और एकदम से भागना शुरू कर जाएगा, तुम भी पैनिक करोगे ये हुआ क्या? गेटिंग माय पॉइंट? एवरीबॉडी लिसन्स. वो ये सोचे, जस्ट फॉर अ सेकंड इमेजिन करो आप सब लोग कि आप एक सड़क पे जा रहे हैं, चलो सपोज करो मॉल में, और एक बंदा आपके पास आ रहा है, एकदम से वो भागना शुरू कर दे, भाग के आपको क्रॉस कर दे. You will feel he is crazy or what? And आपकी बॉडी में यूं हो जाएंगे. Exactly. आप यूं बिल्कुल पैनिक हो जाओ, यूं साइड पे से दे देंगे कि वो, क्योंकि आपको लगा कि ये यार मेरी तरफ आ रहा है, भाग के पता नहीं क्या करेगा, आपने उसको जगह दे दी. एक तो ये चीज ये करेगा ना, इंसान भी रिएक्शन देता है. कुत्ते से आप ये कैसे उम्मीद करते हैं कि आप उसके मुंह पर भाग रहे हैं, आप उसे हुश हुश कर रहे हैं, आपने एक पत्थर उठाया और मारने का आपने उसको वो दिया, and he won't react. He will definitely react. Yes. He is a living creature. He and has this defensive feeling आती है, एक इंस्टिंक्ट होती है उनकी भी, जैसे हमारी है. तो exactly. देखो अल्लाह ने हमें बनाया ना, हमारे अंदर हम सबके अंदर एक बेसिक चीज दी है, वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. समझते, सब लोग समझते हैं बिलीव कीजिए कि आप कहीं पे भी जाते, इवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इवन इन स्कूल, इवन हॉस्पिटल, इवन बैंक, आप बैंक की लाइन में जल्दी से निकलना चाहते हैं. यू वांट टू सर्वाइव फ्रॉम दैट लाइन. आप स्कूल में सबसे अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं. यू वांट टू बी प्राउड, यू वांट टू सर्वाइव. इवन अगर आप नहीं भी तो कहते हैं पासिंग मार्क्स ही आ जाए, 33 नंबर आ जाए, मैं पास हो जाऊं. यू वांट टू सर्वाइव. आप खाना खाते हैं, आप खाना तब तक खाते हैं जब तक आपका टमी अच्छा फील नहीं करता. अगर एक बंदा ट्राई दिस फॉर 24 आवर्स, डोंट ईट एनीबॉडी एनीथिंग, डोंट ईट एनीबॉडी एनीथिंग. ठीक है. आप कुछ नहीं खाएं और फिर उसके 25th आवर में आप खाना खाएं, आप उतना ही जल्दी खाना खाएंगे और आप उतना खाना खाएंगे जिससे आप फुल फील करें कि हाँ आई कैन स्लीप नाउ. यू विल ईट टिल द फीलिंग दैट यू कैन सर्वाइव. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये चीज हर लिविंग क्रीचर में अल्लाह ने दी है. सेम गोज फॉर डॉग्स, एनिमल्स, डोंकीज, कैट्स, इवन बर्ड्स, इवन चिमटियां, उनमें भी होता है. आप उसका चींटी का रास्ता रोको तो वो दूसरा रास्ता जाने की कोशिश करेगी, वहां से रोको तो तीसरा रास्ता. she will try to find her way out. That's very true. है ना? Very true. क्योंकि उसकी, हमारी लाइफ का साइकिल ये है, हम पैदा होते हैं, हम पढ़ते हैं, हम शादी करते हैं, हम बच्चे पैदा करते हैं, फिर हम बूढ़े रहते हैं, हम वापस मिट्टी में चले जाते हैं. लेकिन इस पूरे साइकिल में वी ट्राई टू सर्वाइव. वेरी ट्रू. तो ऐसे एनिमल का भी है, आप उसको उसके सामने, देयर आर वेरी गुड वीडियोस मुना, जो आप सब लोग इंक्लूडिंग यू कैन फाइंड ऑन यूट्यूब, जहां पर आपको ये गाइडलाइंस, स्मॉल गाइडलाइंस हैं कि आप स्पेशली डॉग्स के पास से कैसे गुजरें कि वो आपको चीखे नहीं. और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे तो ये वीडियोस बहुत बाद में पता लगी, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कोई भी एनिमल हो, हाँ पीछे जी चुड़चुड़िया, क्या एक सेकंड दीजिएगा, मेरा बिल्ला. हाँ जी. तो आई वाज सेइंग कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इवन मेरे फ्यूरियस स्ट्रीट डॉग्स की बात करें जो बहुत करके आप लोगों को काटते हैं ना, उनके पास जाओ, और एनिमल कभी भी वर्ड्स नहीं समझता. मैं तुम्हें किल कर दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, गालियां. एनिमल नहीं समझता. एनिमल समझता है हाई टोन और लो टोन, लव टोन और हेट टोन. दे वर्क ऑन टोन्स लाइक एन इंस्ट्रूमेंट.
they feel that we are a kind of an instrument which plays, which produce some sound. तो हमारी जो पिच होती है उससे वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि हम खुश हैं, Exactly. उदास हैं. Okay. हाँ, high pitch, low pitch, soft pitch, hard pitch, no pitch at all. They will understand कि आप कुछ बोल ही नहीं रहे तो क्या मसला है. अच्छा, तो ऑलवेज रिमेम्बर, अगर आप उसको हुश हुश करेंगे, हुश हुश, और स्ट्रीट पे जरा लाउडली करेंगे, ही विल फील कि भाई कुछ गड़बड़ है. दिस पर्टिकुलर क्रीचर, ये जो मखलूक है ना, ये मुझे पसंद नहीं कर रही है, एंड क्योंकि इसे मुझे पसंद नहीं कर रही, मुझे नुकसान दे सकती है. इनका माइंड ऐसे ही चलता है जैसे हमारे. बिल्कुल बिल्कुल, फौरन डिफेंसिव. दे नॉट अटैक, दे विल नॉट अटैक. ये एक बादल की तरह काम करते हैं. बादल होता है ना जो बहुत गरजता है लेकिन बरसता नहीं है. ये सिर्फ भौंकते हैं, उस हद तक भौंकेंगे कि आप भाग न जाए, आप उसकी टेरिटरी से दूर ना निकल जाए. पहले तो वो भौंकेंगे, आपको वार्न करेंगे, आपके पीछे पीछे भी. अगर आपने भागना शुरू कर दिया तो पीछे पीछे आएंगे. द की इज दैट, डॉग के लिए स्पेशली की इज दैट कि आप उसको खाना दे दें. डोंट डू एनीथिंग, उसको खाना रख के भाग जाए. वो खाने पे आएगा, आप पे पीछे नहीं आएगा, लेकिन वो आपका फेस पहचान लेगा. नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तो वो इस दफा कम भागेगा, आप फिर खाना रख दें. हर टाइम में आपके पास खाना नहीं है, आप लोग कहेंगे भाई हम क्या हर वक्त खाना देते रहे इसको. तो आप उसको बोले, हे डॉग, हाय हाय, हाउ आर यू, हाय कैसे हो, अच्छा ठीक हो. ऐसे कहते हुए आप आराम से निकल जाएंगे. डॉग विल सेंस द टोन, he will not say anything. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. I was on the street, there was a very furious dog and he followed me throughout the street and I was like, easy, good dog, easy, and I walked very slowly and I survived. That's So really the key is that आप कोई ट्रेन, मुना, it was there were 6-7 dogs जो मेरे दोस्त नहीं थे. they were street dogs, उनकी अलग स्ट्रीट थी. and I used to, एक दो दफा मैं उनके पपीज को खाना देने के लिए गई थी, तो जो उसकी मदर थी she was okay with me, मगर बाकी डॉग्स in an attacking mood. उनको लग रहा था कोई स्ट्रेंजर हमारी गली में कैसे आया. they are very particular about their इलाका. तो अच्छा बात यह है कि आपको कुछ भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है. एवरीबडी हु इज लिसनिंग, उनको सिर्फ खाना रख दो. अच्छा, खाने में वो स्पेशल बिरयानी नहीं खाते, वो मुर्ग चिकन टिक्का नहीं खाते, शाशलिक चिकन, वो इटालियन थाई नहीं खाते, वो हमारा कचरा खाते हैं. कचरा अगर आपका इतना भी आप अपना एग्जैक्टली यार, मतलब इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. पीपल फाइंड इट लाइक, आई डोंट नो व्हाई. ये लोग हमारे कचरे में घुसते हैं, हमारा सड़ा हुआ बासी खाना खाते हैं. समटाइम्स विद न्यूज़पेपर में जब खाना पड़ा होता है वो खाते हैं. गंदे चावल, हड्डियां, इवन ये कि जिस राइस में ना एक चिकनाई सी आ जाती है, ये गंदी सी, आफ्टर 3-4 days स्मेल उठ रही होती है. दे ईट दैट. अगर वो कचरा है, आप एक गंदी सी पुरानी प्लेट या इवन अखबार में या गंदी सी किसी चीज पर आप शॉपर पे रख के सिर्फ अपने हाथ से दे देंगे ना, दे विल बिकम योर फ्रेंड. तो एटलीस्ट हम इंसानों में इतना बड़ा दिल तो होना चाहिए कि हम उनको अपना कचरा अलाउ कर दें खाने के लिए. सही. जहां तक नापाकी की बात है, तो अगर आप, हाँ, वी वर टॉकिंग अबाउट, तो आई टोल्ड यू कि जो आउटसाइड एनिमल है, ठीक है. सूरह कहफ का तर्जुमा सब पढ़ें, ठीक है. उसमें कुत्ते का जिक्र है. कुछ उलमा ये कहते हैं कि कुत्ता केव के बाहर था, कुछ कहते हैं कि केव के अंदर था. तो दोनों सूरतों में कुत्ता वाज देयर एंड कुत्ता वाज वन ऑफ देम. ठीक. तीसरी बात ये कि जब उन लोगों ने दुआ की थी अल्लाह मियां से कि हमारी रहमत दे, कुत्ते ने भी दुआ के लिए हाथ उठाए थे और अल्लाह मैंने उसकी दुआ कबूल की थी. कुरान में 2 जगह कुत्ते का जिक्र है और बहुत ही अच्छे अल्फाज में है. उस पर्टिकुलर कुत्ते को जन्नत मिली. अगर कुत्ता इतना ही नजिस होता, कुत्ते से नमाज नहीं होती, कुत्ता इतना गंदा होता, तो क्या अल्लाह मियां उसके कहने पर उसकी दुआ की भी रहमत की दुआ सुनते या उसको जन्नत देते? हुजूर पाक के घर में एक स्ट्रे कुत्ता आता था. हुजूर पाक ने कभी उसे डंडे देके बाहर नहीं निकाला. इवन ही यूरिनेटेड अंडर द बेड ऑफ आवर प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम. उनके बेड के नीचे ही यूज्ड टू,
मतलब भी वो पेशाब कर देता था, ठीक है। टू बी वेरी प्रिसाइज, उर्दू जिनको समझ में आती है वो ये बात समझे। हुजूर पाक ने उससे कुछ भी नहीं किया, ना उसकी एंट्री बंद की, उन्होंने बहुत सारे पानी से उस जगह को धो लिया। आप बहुत सारे पानी से मुराद है एटलीस्ट एटलीस्ट 3 टाइम्स आप धो लें, 4th 5th टाइम धो लें, अच्छी बात है। और वो पानी, और उनके उस जमाने में आप लोग को पता है कि हुजूर हमारे जो नबी थे, उनके पास इतनी डिटर्जेंट्स और इस तरह की फिनाइल और एंटी बैक्टीरियल ये सब चीजें नहीं होती थी, पानी ही होता था, उन्होंने पानी से ही धोया है। आपके पास तो बहुत सारी चीजें हैं, राइट, आप उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें। देखें, एवरी एक्ट काउंट्स, राइट। अगर आप उठकर 2 कदम चलकर किसी एनिमल के लिए खाना देते हैं तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट है। एक तो उन 2 कदमों का आपको सवाब मिला, अल्लाह ने आपको नेकियां दी, क्योंकि आप किसी किसी की मदद के लिए जा रहे हैं। वो मदद है कर रहे हैं आप वॉइसलेस, किसी बेजुबान की, जो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता बेचारा। तीसरी चीज के उसका खिलाया हुआ खाना आपके लिए सदका जारिया है, वो आपका सदका है। वो वेनेवर वो मोमेंट आपके लिए अल्लाह मियाँ या कयामत के रोज पर वो आएगा, उस कयामत तक उस मोमेंट के लिए आपको सवाब मिलता रहेगा, क्योंकि आपने किसी ऐसे की मदद की है जो उठा के बेचारा कुछ अपने लिए कमा भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है। ये ऑलवेज, ये वो रोजाना एनिमल रोजाना घूमता है और खाना ढूंढता है, उसको अपने अगले वक्त खाने की श्योरिटी नहीं है। तो सोचा आपको कितना सवाब मिल रहा होगा। अब एनिमल की नापाकी की बात करते हैं। देखो मेरे घर में ना मैंने कुत्ते भी रखे हैं अपने पास, ठीक है, कैट्स भी रखी हैं। कैट्स का गंदी होता है, उनके लिटर ट्रेस होते हैं, कुत्ता कहीं पे भी शिट करता है। मैंने घर में रखे हैं। अब मैं रेस्क्यू लेकर के लेके आती थी, मैंने छोटा सा पपी व्हाइट रंग का लिया था, उसका कान पूरा सड़ गया था ना। आई केप्ट हिम इन माई वॉशरूम डेली 2-3 टाइम्स, उसकी ड्रेसिंग करना, उसको साफ करना, उसको प्यार करना, उसके साथ खेलना, उसको उसको कंसोल करना कि उसका पेन अच्छा हो जाए। 3 महीने तो उसे मैंने रखा। एक और बड़ी डॉग थी, उसको मैंने अपने रूम में रखा था, दूसरा रूम था, और मैंने उसका पूरा वूंड, ये पूरी जल गई थी, वो यहाँ से पूरी जल गई थी। उसकी जब क्या उसका ये हिस्सा पूरा जल गया था। एंड उसका जो है ना सर्जरी हुई थी, उसको हमने स्टे किया था फीमेल को, क्योंकि वो बच्चे प्रोड्यूस ना कर सके, क्योंकि वो मेरे घर में आती थी। तो आई वॉन्टेड हर नॉट टू हैव बेबीज एनी मोर, बिकॉज उसके काफी क्लटर्स निकल चुके थे, उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं था। दूसरा ये बिकॉज शी वॉज कमिंग टू माई हाउस, तो वैसे ही वो 5 पपीज हमारे मोहल्ले वाले खेल चुके थे। आई डेंट वांट हर टू गो थ्रू अनदर ट्रॉमा। तो वो पूरा जल गया, उसको मैंने 3 मंथ तक उससे रखा, फिर उसके कीड़े पड़ गए, फिर मैंने रखा। तो whenever if you are doing a very good deed and you know, I said कि एफर्ट भी काउंट होती है। तो आई यूज टू, मैंने एक नमाज का 2-3 ड्रेसेस बना लिए थे। मैं उसके पास जाती थी अबाया पहनकर, ताकि वो अबाया इनके पूरा कवर में करती, ताकि जो कुछ भी गंद उसका है वो उस पर गिरे। फिर भी मुझे वहम होता था, आई एम लाइक यू ऑल गाइस। तो मैं नमाज के कपड़े चेंज करती थी, फिर मैं वुजू करती थी, नमाज पढ़े, फिर मैंने वापस वो कपड़े चेंज कर लिए, ताकि नमाज के एक पर्टिकुलर कपड़े रहें, मैं मेरी नमाज पाकी के साथ अदा हो जाए। और जो है इन इनका जो मैं इसकी जिम्मेदारी ली है, तो अब अपनी पाकी के लिए मैं ये करती थी कि मैंने 2-3 ड्रेसेस रख लिए थे, और मैं उसके पास से 1-2-3 ड्रेसेस कुत्ते के पास जाने के लिए भी रख लिए थे, ठीक है। तो मैं उसको पहनकर उसके पास जाती, उसको अपने गोद में रखती, उसका पूरा ये हिस्सा जला हुआ था। आई यूज टू क्लीन इट विद पायोडीन, आई यूज टू इसका एक फॉर्मूला क्रीम बनाई हुई थी, डॉक्टर ने कहा था, वेट ने कहा था, वो लगाया सब कुछ। और उसके बाद उसको इंजेक्शन भी लगाना, नापाक या पाक रहने की बात। तो मैंने तो बहुत एक्सट्रीम उस पे जाकर के अपने घर में उसको रूम दिया, फिर मैं उस रूम को डेली 2 से 3 दफा विद फिनाइल सर्फ से धोया करती थी, उस वॉशरूम को मैं धोया करती थी। अच्छा, उस पपी को तो मैंने होममेड पैम्पर्स बनाए थे। I can do all that. I'm not expecting all of you to do this thing. I'm not asking you guys to go on streets and find out an injured dog or उनको करें. But you can do what you all can do. You can be nice to them. You can be kind to them. और nice और kind होने के लिए you don't have to go to any training institute and get the proper training. जैसे मैंने कहा, कुत्ते आप पे कभी अटैक नहीं करेंगे अगर आप उनको उनके दोस्त बन जाए। दोस्त पे कुत्ता कभी अटैक नहीं करता, ठीक है। बस मैं आई जस्ट वांटेड टू से कि नापाकी हर जगह है, सिर्फ कुत्ते में नहीं है। अगर कुत्ता आपको टच कर रहा है तो जस्ट वॉश इट अवे एंड देन डू योर वुजू और प्रॉपर नमाज पढ़ें। कोई हार्ड साइंस नहीं है या कोई ऐसी दलील नहीं है इस्लाम में
जिसमें आपको ये पता है कि कुत्ता नजिस है, कुत्ता नजिस नहीं है, वेट, उसका वेट नजिस है। अच्छा, अभी तुमने अर्लियर मेंशन करा था कि एक डॉगी था दैट वाज बर्न्ड और उसके कान पे काफी इंजरी थी, तो व्हाट डू यू थिंक कि लोग जानवरों को, स्पेशली कुत्तों को, इतना हर्ट करके क्यों खुश होते हैं? मतलब इसमें लॉजिक क्या है? व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ सच पीपल एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम? बी वेयर ऑफ दोज पीपल, दोज पीपल आर नॉट नॉर्मल पीपल। जो लोग कुत्ते को मारते हैं और कुत्ते को ना सिर्फ, देखो, होश होश करना, पत्थर मार के भगाना, अपना रास्ता क्लियर करना, नॉर्मल लोग यही करते क्योंकि उनको पता नहीं है, दे डोंट वांट टू नो, मे बी उनको नहीं जानना अभी कुछ, शायद भी किसी को पता लग जाए इस वीडियो से जो भी हम कर रहे हैं एक एफर्ट। लेकिन जो लोग कंटिन्यूअस करते हैं और रेगुलर बेसिस पर एनिमल्स को हर्ट करते हैं, दुम पकड़ के खींचना, कुत्ते को प्यार कर करके प्यार पे बुलाते हैं, एंड देन दे स्लैप, ये करना, किटन्स को, बच्चों को, किटन्स को तंग करना, उनकी मम्मा से दूर कर देना, या कुत्ते के बच्चों को फेंक देना, या डोंकी से काम हो गया तो उनको बीच सड़क पे छोड़ देना मरने के लिए, ये लोग बल्कि कभी नॉर्मल तो मैंने नहीं है। देखा इन है। लोगों से आप अपने आप को बचाएं। हाँ, और वो जो जानबूझ के जला देते हैं जानवरों को जिंदा, या उनको टॉर्चर करते हैं, एसिड फेंक देते हैं, आई थिंक ये कुछ दिमागी मसला होता है इन लोगों का। आई थिंक बल्कि साइंटिफिक रिसर्च तो की गई है इस बारे में, एंड अकॉर्डिंग टू साइंस ये है कि पीपल दैट डू दिस काइंड ऑफ क्रूअल एक्ट्स ऑन एनिमल्स, दे डोंट स्टॉप देयर। मतलब फिर वो इवेंचुअली इंसानों पर भी हाँ, करने लगते हैं। दे आर काइंड ऑफ साइकोपैथ्स इन द मेकिंग। तो वी शुड बी वेरी ऑफ सच इवन वो ना पीपल। ऐसी, एग्जैक्टली, और ये थ्योरी जो है ना, ये इट्स नॉट जस्ट अ थ्योरी। नेटफ्लिक्स अगर सबके पास ऑफ कोर्स होता है, अब तो काफी लोगों के पास होता है, नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री है, आई विल फाइंड आउट द नेम, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। उस डॉक्यूमेंट्री पर एक बंदा स्टार्ट करता है किटन्स से। वो क्या करता है कि किटन्स को उसने एक वैक्यूम बैग में रखा, और वैक्यूम, दोनों किटन्स को लिटाकर वैक्यूम बैग में रखा जिंदा, और वैक्यूम बैग को सील किया, और उसमें से सारी एयर वैक्यूम कर ली। ओह माय गॉड। बच्चे जो है, उसने पूरी वीडियो बनाई है उसका बकायदा कि वो बच्चे उसमें मर गए दम घुटने से, एंड ही फेल्ट प्राउड। सेकेंड वीडियो में उसने किया, उन्हीं किटन्स को फ्रिज में रख दिया, मरे हुए किटन्स को फ्रिज में रख दिया अपने। थर्ड वीडियो में उसने एक और किटन लिया, और उसको एनाकांडा आता है ना, बड़ा वाला अजदहा, ठीक है, उसके अजदहे की खुराक होती है रिल्ली, ठीक है, उसने उस किटन को, छोटे से किटन को, उस अजदहे के सामने छोड़ दिया, एंड देन ही एक्चुअली अटैक्ड दैट किटन, पुअर किटन, एंड उसको वो स्वॉलो कर गया, एंड उसने पूरी वीडियो बनाई। एंड देन ही डिड नॉट स्टॉप देयर, वन थिंग लेड टू अनदर, उसने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, किटन को लेकर उसके पीसेस कर दिए, आई बिलीव, जो मुझे याद है, कैट से फिर वो बड़े एनिमल्स पे आया, फिर वो और बड़े पर इवेंट। अच्छा, उसके बारे में जो कैट लवर, जो एक्टिविस्ट लोग हैं, उन्होंने सर्च की उसकी पूरी वीडियो को, एक एक चीज मेड, मतलब ये जैसे फर्नीचर नजर आ रहा है ना तुम्हें, हम्म। उन्होंने सर्च किया कि उसकी लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई करें। तो ये फर्नीचर का मेड निकाला, एक एक चीज का मेड निकाला, और पता लगाया कि एक पर्टिकुलर एरिया में, इवन उसका एड्रेस और नेम भी पता लगा लिया, बट अथॉरिटीज डिड नॉट डू एनीथिंग अंटिल ही मर्डर्ड अ पर्सन, अ वेरी स्ट्रेंजर पर्सन, ठीक है, उसके बॉडी के पीसेस करके डिफरेंट डिफरेंट डस्टबिन में उसने फेंके, Oh my तब उसको पकड़ा। God, this is so horrific. तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम एन एनिमल, जो एनिमल, मुना, यहाँ पर मतलब आई कैन, बिकॉज सब लोग सुन रहे हैं, कोई भी हो सकता है, तो मैं वो किस्सा नहीं बता सकती, लेकिन जानवर को कहते हैं ना, हम ये जानवर है, इंसान जानवर के साथ जानवर से भी ज्यादा बदतरीन सलूक करता है। I agree. I so agree. डोंकीज, कैट्स एंड डॉग्स आर द मेन विक्टिम। It's जहालत a का very कोई sad लेवल है ना, reality. वो, Yeah, it's a very इट्स sad. सैड, इट्स अलार्मिंग। ऐसा आदमी या ऐसी औरत या ऐसा बच्चा जो इस माइंड सेट के साथ है, उनकी तरबियत करनी चाहिए, उनको चाहिए कि उनकी हिदायत करें, और अगर वो लोग नहीं सुनते हैं तो उन लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये इवेंचुअली जो है ना, अजियत पसंद, सिक माइंडेड लोग होते हैं, ये आखिर में आपको भी नुकसान उठाएंगे, तो ये बेसिकली साइको होते हैं। So, what would you like to say about protecting these animals we see on the road? हम क्या कर सकते हैं ऐसा to protect, like अगर हम कहीं animal cruelty होते हुए देखें, तो what action can we take?
What do you recommend? मुना 4-5 साल पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब लॉज बन गए हैं, पनिशमेंट्स हैं। आई गेस 2 to 5 years की पनिशमेंट है, एक अच्छा खासा अमाउंट है। एनिमल्स को अब कलिंग जिसे कहते हैं कि जहर दे के मार देना, वो अब बैन हो चुकी है। इस्लामाबाद में, लाहौर में तो हो चुकी है, कराची में भी कब होगी आई डोंट नो, हो गई नहीं हो गई है। यू हैव टू फाइंड इट आउट, यू ऑल एक्चुअली हैव टू फाइंड इट आउट। कहीं पर ऐसा कुछ देखें जो इनह्यूमन है। देखो ये एक्टिविटीज ह्यूमन नहीं है, ये एक्टिविटीज इनह्यूमन है। फौरन उसकी वीडियोस बनाए आजकल तो वो है, इसको लाइव करें, यूए फेसबुक पर है तो लाइव करें, वहां जाएं, जो भी बंदा ऐसे हरकत कर रहा है उसको लान तान करें, उसको उसके लिए उस एनिमल के लिए रुकें। मेक श्योर करें कि आप उसको, तो देखो उस आदमी को नहीं सुधार सकते जो कि कर रहा है, एटलीस्ट आप उस एनिमल को बचा सकते हैं। ठीक है, आप मुझे इससे याद आया, यही कराची में गुलिस्तान जहर की तरफ था, ये क्या था, एक कुत्ते पर तकरीबन 50 के करीब का क्राउड, सबने मेरे को उसे डंडों से मारा है। यस, उसे उसे जो है ना, गर्दन से उसको पकड़ा है, उस पे रस्सी कुछ बांधी है। Oh वो God. बेचारा मतलब हेल्पलेसली वो लटका हुआ है, और उसको God. डंडों से पीटा है until somebody came, some actually human came and stop it। उसके बारे में पूरा केस हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो द टॉर्चर, आप सब लोग जो देख रहे हैं वो ये Last देखें कि लोग. अगर आपको मैं गले से बांध दूं, मैं गंदे आपको गले से बांध कर एक पोल पे लटका दूं, मैं आपको डंडों से मारूं फिर ओनली फॉर 5 मिनट्स, आपको कैसा लगेगा? यू विल फील ह्यूमिलेटेड, इंसल्टेड, यू विल फील कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। और उस 5 मिनट के इंसिडेंट के बाद आई एम श्योर आप अगले 5 महीने तो किसी को फेस करने लायक नहीं रहेंगे। तो उस एनिमल का क्या होता है जो कचरा खाता है, जो Exactly. You know, आई मीन ये तो established fact है कि animals feel, they have sense, they can reason. तो उनको तो उनकी बस अल्लाह मियां ने जबान नहीं दी उनको कि वो हमसे बात कर सकें। तो एज अ ह्यूमन बीइंग सुपीरियर देन दीज एनिमल्स, ये हमारा फर्ज है कि वी शुड बी नाइस टू देम, वी शुड सेव देम फ्रॉम अट्रोसिटीज। That's एग्जैक्टली, what makes us human. ऑफ कोर्स, मगर हम अब ह्यूमन नहीं रहे मुना, वी That's हैव a sad बिकम thing. अनदर हाँ, हमारी सोसाइटी हार्टलेस, बहुत खराब हुई है। तो बहुत ज्यादा, मतलब मैं ये एक, सोचती हूँ कि जिस मुल्क में एनिमल्स की इतनी अब्यूज है, इतना maltreated है एनिमल, उस पे अल्लाह की रहमत होती है। हमारे मुल्क में अल्लाह की रहमत रहेगी इफ वी कंटिन्यू लाइक दिस। हमें डरना हमें डरना चाहिए बहुत ज्यादा। अल्लाह मियां ने अपने नबियों को, जितने उनके 33 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर शरीयत उतरी, ठीक है, 1,24,000 जो हमारे नबी पैगंबर जो हमारे प्रॉफिट्स थे, उनमें से 33 लोगों के ऊपर शरीयत उतरी। और हजरत नूह को देख लीजिए, हजरत लूत को देख लीजिए, एक गुनाह करने पर अल्लाह मैंने पलट दी, अजाब आया एक गुनाह पर। ठीक है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो सारे गुनाह अब हमारे पास, हमें मुसलमानों की उसमें होते हैं, सब होता है। हजरत लूत की कौम में जो हुआ वो भी होता है। हम हराम भी खाते हैं, हमें मना है, हम शराब भी पीते हैं, हम जिना भी करते हैं, हम रिश्वत भी लेते हैं, झूठ बोलते हैं। आ, हम क्या नहीं करते जो उन लोगों के ऊपर हुआ, हम पे अल्लाह मियां ने उम्मत मोहम्मदी की वजह से भी। और दूसरा ये कि हम लोगों पर अल्लाह मियां ने बहुत ही, हम मतलब बहुत ही, बहुत क्या कहते हैं, लव कौम है। लेकिन देखो अल्लाह मैंने कहा है कि अभी जो कुछ भी आप करेंगे आपका टेस्ट है, यू हैव टू पास योर टेस्ट। अगर आपने पास नहीं किया, इवेंचुअली वी ऑल विल बी पनिश्ड, इंक्लूडिंग मी, यू, एवरीबॉडी। Yeah, बट द all have पनिशमेंट concept. हाउ मच सिवियर, ये हमें डिसाइड करना है, विच वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट। हम्म। एंड द एक और गुड इंसिडेंट मुझे याद आया है, विच आई वुड डेफिनेटली लाइक टू शेयर हियर। एक प्रॉस्टिट्यूट थी, तुम्हें भी पता होगा, हुजूर या इस्लाम के जमाने में जब वो काफिर थी, एंड देन शी यूज्ड टू सेल हर बॉडी, प्रॉस्टिट्यूशन की है ना उसने, हम्म। ठीक है। और उसने सिर्फ एक कुत्ते को अपने जूते में पानी पिलाया था, क्योंकि वो कुत्ता थर्स्टी था, बहुत प्यासा था। उस एक पानी पिलाने की वजह से उसको अल्लाह मैंने जन्नत दे दी थी। हम्म। तो एनिमल राइट्स जो है ना, वो कहीं पर भी कम नहीं है। आपको बिल्कुल बस सही। ह्यूमन होने की देर है, आप लोग ह्यूमन ही नहीं है। आई एम सो सॉरी टू से, पीपल आर नॉट ह्यूमन दीज डेज। दैट्स वेरी ट्रू। अगर कोई मैं रेस्क्यू करती हूँ, ठीक है, मैं डोनेशन नहीं मांगती। बहुत कम ऐसा हुआ है जो मैंने अपने फ्रेंड से बोला को कि यार अब मेरे, आई एम वेरी मच ब्रोक राइट नाउ एंड आई हैव टू फीड देम, मेरे पास 14 कैट्स हैं या 6 कुत्ते हैं, या कभी 8 कैट्स हैं, कभी 4 हैं, कभी 2 कुत्ते हैं। और
उसके लिए कभी लोग 500, मुना यकीन करो, वो पपी जिसका कान खराब होता उसके लिए लोगों ने डोनेशन के नाम पे 500 रुपए दिए। 500 रुपए में आपकी खांसी की दवा नहीं आती। आई वॉज लाइक वट एवर इट इज, आई एम नॉट आस्किंग फॉर बिग अमाउंट, मगर यहाँ पर उसका जेस्चर काउंट किया। एटलीस्ट उसको ये पता था कि मुझे इस केस के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। जैसे कि एक मस्जिद बनती है, एक मस्जिद बनती है और तुम्हें सिर्फ एक ईंट लगानी, यू कैन अफोर्ड ओनली 1 ईंट, लेकिन वो ईंट काउंट होती है। थोड़ी सी उसमें सही, लेकिन उसमें आ, उसमें ह्यूमन होना बाकी था उस आदमी में। नहीं, इट्स अ वेरी बिग थिंग जो तुम करती हो ना। आई रियली रिस्पेक्ट द फैक्ट कि तुम एनिमल रेस्क्यू पे इतना डेडिकेटेडली काम करती हो, एंड आई रियली होप कि you get a lot of support for what you're doing because it's a very big thing, bringing the animals home, उनका ख्याल करना, उनको सही करना. Not everybody अगर is willing to do that, but I hope कि लोग, मैं ये चाहती हूँ कि लोगों को awareness हो कि there are people like you doing a good job, तो at least the least we can do is send some donations, कि support मिले किसी तरह या से. अगर अगर सब डोनेशन नहीं भी दे सकते, इफ यू फील, इफ एवरीबडी ऑफ whoever is listening ये महसूस करता है कि डोनेशन वाली कम, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल एक्टिविस्ट, ये बेसिकली पैसा कमाती है, तो आप नहीं करना डोनेट उनको, आप एनिमल को खुद फूड लेके खिला दें। हाँ, ये भी है, खुद कर ले, आपके डोनेशन नहीं करना. आपके यस, आपकी अपनी लेन में, यू डोंट हैव टू गो फार एनीवेयर, आपकी अपनी सोसाइटी में, आपके अपने मोहल्ले में एक कुत्ता तो जरूर होगा, ठीक है, नहीं है ना? तो इवन ये कि आप पानी का बोल भर के अपने घर के बाहर रख सकते हैं, दे विल कम, कोई भी आएगा प्यासा जो है ना, 24 घंटे में कहीं भी घूम रहा होगा और पानी पी के चला जाएगा। अब ये एक्ट आपका बोल रखने का भी मतलब ये तो सदका जारिया। जब पत्थर हटाने पे अल्लाह मियाँ रिवॉर्ड करते हैं, जब किसी के लिए नियत अच्छी करने पे अल्लाह मियाँ रिवॉर्ड करते हैं, तो इसके लिए तो पता नहीं क्या करेंगे अल्लाह मियाँ। दूसरी चीज जो आप लोग को शायद मोटिवेट करे इस तरह की एक्टिविटीज करने के लिए, वो ये है जो मेरे जहन में रहती है। मैं मेनली इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ। आई एम नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। मैं अल्लाह के, मुझे मतलब अल्लाह ने मुझे बनाए, तो मेरे जहन में ये होता है कि ये जो लोग हैं ना, ये जो बच्चे हैं, ये किटन्स हैं, ये डॉग्स हैं, ये मेरा उनके साथ प्यार करना, मेरा उनके साथ खेलना, इवन मैं स्ट्रीट डॉग के पास जाके पूछती हूँ कैसे हो, क्या कर रहे हो, ठीक हो? कभी वो लोग आ जाते हैं, कभी वो डर के भाग जाते हैं, लेकिन मेरा एक्ट काउंट करता है। आई एम अ वेरी ग्रीडी पर्सन। मैं चाहती हूँ कि ये तमाम चीजें मुझे कब्र में आसानी दें। ये सब लोग मेरे लिए दुआ करेंगे, ये अब कयामत तक करेंगे। इवन ये कि एक बच्चा जो था वो मेरे ही कुत्ते ने उसे अटैक किया, स्ट्रीट डॉग का बच्चा, किटन था। मैंने उन लोगों को हटाया, लेकिन वो डर के मारे उसने, मैंने ऐसे अपने गोद में ऐसे लिया ना हाथ में मुना, एंड उसने अपनी आखिरी सांस ली और मेरी गोद में उसने इंतकाल किया। ठीक है, मैं डर गई, मैं उसको घर लेकर आई, मैंने उसको 1-1.5 घंटे तक उसको मैंने प्रेशर पॉइंट्स होते हैं इनके पेट की तरफ जहाँ दिल होता है, हार्ट, वहां पर मैंने उनको बहुत ज्यादा, बहुत पंप किया, was क्राइंग, और मैं पंप, बट मेरी सारी एफर्ट्स तो जा चुका था। लेकिन एफर्ट काउंट, नियत काउंट करता है। नियत काउंट करती तो है. अगर आप लोगों को बहुत नफरत है, सब कुछ है, ठीक है, अपनी कब्र के लिए करें। ये लोग बहुत हेल्प करने वाले हैं। अल्लाह, मैंने आप लोगों को ये जो टॉयज हम लोग बनाते हैं ना, फैक्ट्रीज में बच्चों को देते हैं, बेसिकली अल्लाह मैंने हमारे लिए टॉयज बनाए हुए हैं। और ये हमारी तरबियत में, अब तुम्हें पता है अमेरिका यूरोप में क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज में छोटे 5 साल के 2 साल के बच्चों को बिल्ली का बच्चा तोहफे में दे देते हैं। नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर हिज फ्रेंड। अब वो बच्चा जो है वो कॉन्शियस हो जाता है, इसको खाना खिलाना है, इससे प्यार करना है। उसने पॉटी की, उसको लग गई तो वीडियो सर्च करो, उसको लग गई तो बच्चे रोते हैं और उसकी वुंड के ऊपर, छोटे से पॉग के ऊपर उसको करते हैं कि वो ठीक हो जाए। वो एम्पथी सिखाते हैं ना, हार्ट, इसीलिए अंग्रेजों में हमसे एग्जैक्टली, ज्यादा एम्पथी है। हालांकि वो मुसलमान नहीं होते, लेकिन अफसोस वो नहीं है। मुसलमान होके इतनी एम्पथी नहीं दिखा सकते एनिमल्स को. इट्स सो सैड. इट्स वेरी सैड। और आई मीन ये जो है ना थ्योरीज हैं, इसकी स्टडीज हैं कि इस तरह का एक्ट बच्चों की तरबियत के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चा सॉफ्ट हार्टेड होता है, जब वो बड़ा होता है तो ना सिर्फ वो एनिमल बल्कि दूसरे एल्डरली पीपल के लिए वो काइंड होता है। उसमें शेयरिंग आती है। अगर आपका इकलौता बच्चा है, उसमें शेयरिंग आती है, वो अपने फूड से उसको देता है, अपने अपने बेड पे सुलाता है, अपने टॉयज के साथ उसी किटन को वो खिलाएगा, उसके साथ खेलेगा, उसका नाम रखेगा। इट्स
ऑल वेरी, आपका बच्चा डे उस एक दिन, चाहे वो 2 साल का है 4 साल का है, उस दिन से लेकर वो रिस्पॉन्सिबल होना सीख जाता है। बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल सही इट्स कह रही हो। it's all means it's beneficial for us, for the animals, for everybody. You can have win-win situation, मगर आप लोग सोचें तो इस बारे में। हम्म। अच्छा, व्हाट वुड यू रिकमेंड टू पीपल, जो जैसे लोग ऐसे हैं ना जो इस पोजीशन में हैं, जो कुछ कर सकते हैं इन जानवरों के लिए, वो क्या करें? बिकॉज हम लोग पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, और यू हैव एक्सप्रेस्ड योर बहुत कंपैशनेटली तुमने बताया था, यू आर सो अगेंस्ट शूटिंग एनिमल्स टू डेथ। आई रिमेम्बर आवर डिस्कशन, एंड I know it disturbs you a lot, but I'm sorry to bring it up. What would you say about this? I agree it should stop. We should stop shooting those animals. We should stop shooting dogs. But what can you enlighten the people that are listening, ताकि maybe कहीं कोई बंदा सुन ले हमें और कुछ करे इस बारे में? देखो, इसके ना 2 से 3 तरीके हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तुम्हें ये बताया, और सब लोग जो सुन रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू लिसनिंग टू अस बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बेनिफिट करेगा। वो ये चीज के दोस्त बना लें उनको। हर हर घर, मैं हर आदमी की बात नहीं कर रही, हर एक घर जिसमें 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, जॉइंट फैमिली है, सिंगल लोग हैं, ठीक है, एक कुत्ते को अडॉप्ट कर लें, स्ट्रेट, ठीक। उसका खाना कचरा दे दें अपना, हाँ, ठीक। घर के अंदर भी रखना नल का ठीक है, गंदा घर के पानी अंदर भी उसको ना भी दे दें। रखें, गेट के बाहर ही रख लें, बस हाँ, खाना दे दें। कभी इवन एग्जैक्टली, इसको इसको कॉलर मत करें, पट्टा वट्टा मत डालें, जस्ट रैंडमली, ठीक है, वो खुद जान जाएगा, ठीक है। उसको करें। और देखो, ईयरली वैक्सीन होती है, जैसे हमारे बच्चों की होती है। ईयरली वैक्सीन आपको कॉस्ट करती है, पहले 2,500 थी, अब कॉस्ट करती है 4,500-5,000, अगर आप अच्छे वेट से कराते हैं। अगर आप किसी भी ऐसी एनजीओ से जो नॉन प्रॉफिट तो होती हैं, जो 24/7 फ्री स्टे की एक्टिविटीज देती हैं, आपको सिर्फ ट्रांसपोर्ट देनी है, तो वो आप लोग उनके पास जाएं, वो आपको फ्री में उसका वैक्सीन ला कर देंगे। सिर्फ ट्रांसपोर्ट के आने जाने की आपको जहमत होगी उनको पास लेके जाने की, वो कर पाए। हम्म। अगर आप उनको बोलेंगे कि भाई घर पे आकर लगा, जो एनिमल बहुत बड़ा है हम नहीं उठा सकते, तो वो घर पर आकर लगाएंगे, उसके वो चार्ज करते हैं 1,000, 1,200, 1,500, डिपेंडिंग अपॉन आपकी लोकेशन क्या है। तो हम्म। इतना आप लोग, अच्छा ये साल की बात कर रही हूँ मुना, एक साल मतलब 365 डेज, अगर आप लोग 5-5 रुपए रोजाना जमा करेंगे तो आपको वैक्सीन के पैसे जमा हो जाएंगे, ठीक है। हम्म। ये इट डजंट कॉस्ट मच। आप अगर घर एक कुत्ता अडॉप्ट कर लेता है, तो वो कुत्ता वैक्सीन हो गया, ठीक। आप लोग ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो उसको न्यूटर या स्प्रे करवा दीजिए, वो भी फ्री में आजकल हो हम्म। जाता है, हम्म। सिर्फ आपको ट्रांसपोर्ट की वो देनी है। हम्म। आप उसको न्यूट्रल करवाएं, न्यूट्रल और स्प्रे थोड़ा सा डिफाइन करूंगी। जो मेल कुत्ता होता है उसको न्यूट्रल करवाने से वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और जो फीमेल होता है वो स्प्रे हो जाती है तो उसकी ओवरीज रिमूव हो जाती हैं, तो वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इस तरीके से आप लोग जो एक एक दफा में 9-9, 12-12 पपीज निकलते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल करने में भी आप लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर एक कुत्ता हर घर ले लेता है, तो फिर डॉग कलिंग की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुत्ता वैक्सीन हो रहा है, कुत्ता जो है न्यूटर ये स्प्रे हो रहा है, उसकी उस पर्टिकुलर कुत्ते की पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है, कुत्ता हेल्दी है, कुत्ता फ्रेंडली है, कुत्ता किसी को काट नहीं रहा है, और कुत्ता बेसिकली ट्रस्ट अगर करना हम सीख रहा उनको है। अच्छा ट्रीट करें, वो खुश रहेंगे, तो दे विल नॉट हाँ, बाइट, दे विल नॉट गो मैड, यू नो वी राइट। कैन एक्चुअली सेव देयर तो लाइव्स, और हम सवाब भी कमा रहे हैं, हम सोसाइटी को बेहतर भी कर रहे हैं, एग्जैक्टली, बच्चों को भी एम्पैथी एग्जैक्टली। सिखा रहे हैं, वी आर रेजिंग बेटर हम्म। ह्यूमंस। फायदे इतने हाँ, हैं। आप लोगों को ब्रीड ब्रीड जो शो डॉग्स होते हैं इतने महंगे महंगे, आपको उनको लेने की जरूरत नहीं है। हम्म। आपको अगर बच्चे को देखो, तरबियत है, बेनिफिट है, आपने सिखाना, एक एक्टिविटी है, आपको उसकी सफाई भी नहीं करनी है, आपको उसको नहलाना भी नहीं है, आपको उसका पिशी पोटी भी नहीं देखना, आपने सिर्फ उसको खाना खिलाना है, 15-20 मिनट में उसके साथ खड़े रहना है। खड़े भी नहीं रह सकते, खाना खिला के हट जाए, बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं कि कुत्ता खाना खा रहा है, हमारा खाना खा रहा है, ये खा रहा है। तो ये चीज बहुत मायने रखती है। बच्चा कहता है हम मैं खाना खिलाऊंगा अपने हाथों से, तो उसके हाथों से। अरे आप देखिएगा कि एक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बच्चा एक्साइटेड होता है, क्योंकि सही। बच्चे बड़े मासूम होते हैं, उनको नहीं पता होता कि गलत से क्या है। उनको ये पता होता है कि ये एनिमल हैप्पी हो गया, मेरे हाथ से खाना खाया उसने, ये मैंने पानी दिया, ये मेरा बोल था मैंने दिया, मेरे पीछे पीछे भाग रहा है, मेरे पीछे पीछे भाग रहा है, दे फील हैप्पी। तो पहले तो आप लोग ये कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते, तो आप किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कॉल कीजिए कि ये कुत्ता हम इससे परेशान है, डर रहे हैं, इसको रीलोकेट करें। हम्म। तो वो लोग ऑर्गेनाइजेशन वाले आएंगे,
आपके रिक्वेस्ट पर, अगेन वो आपसे कुछ चार्ज करेंगे 1000-1200। आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी बिग अमाउंट फॉर द कुत्ता रिलोकेशन। तीसरी चीज ये कि अगर आप ये सब कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप अपने कुत्तों को डराए धमकाएं मत, ठीक है। कोशिश करें अपना कचरा अपने घर से 2-3 गलियां छोड़कर किसी मैदान में छोड़ कर आए, तो कुत्ता कचरे को से अट्रैक्ट होता है, आपके तरफ घर की तरफ आता है। जब आपका डस्टबिन नीचे गिर जाता है तो कचरा फैल जाता है, हर जगह गंदा 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 हो जाता है, और कुत्ता उसी में से चीर फाड़ करके खाना खाता है, क्योंकि वो कुत्ता है, जानवर है। आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो प्लेट में रख के खाना खाएगा। वो सिर्फ जगह साफ करके बैठता है, अदरवाइज वो खाना एक जानवर की तरह ही खाएगा। तो बेहतर ये है कि आप उसको वो एरिया मत दें जहां पर आपके बच्चे या ये लोग घूमते हैं। अगर आप लोग को नहीं अच्छा लगता है, if you really hate them, तो एटलीस्ट डू दिस एफर्ट। खाना जो है वो कचरे की कुंडी की तरफ, जो भी कचरे का बकेट है या कोई भी कंटेनर वहां रखा हुआ है, वहीं फेंके, ताकि सारे जानवर उधर ही जाएं। डॉग कलिंग का मना हो गई है, देखो। और जो लोग पॉइजन करते हैं गोश्त में, ल्यूर करते हैं, देखो मुना, समझने वाली बात है, जो पागल कुत्ता होगा ना, वो कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा, वो तुम्हारे हाथ का खाना तो नहीं खाएगा। ही विल एक्चुअली बाइट यू फॉर नो रीजन। जो पागल होगा, जो हार्मफुल होगा, जो डेंजरस होगा। जो डेंजरस नहीं होगा ना कुत्ता, वो आपको आपके बुलाने पर आ भी जाएगा। आपके जहर दिया हुआ गोश्त, वो भूखा है ना, क्योंकि आपने उसे बुलाया है, वो आप पे फौरन ट्रस्ट करता है। वो हमारी तरह अय्यार और मक्कार नहीं है। वो फौरन ट्रस्ट करेगा, वो आके खा लेगा और आपके सामने तड़प तड़प के मर जाएगा। अगर वो डेंजरस होता वो कभी नहीं आता। फर्क को समझें। जैसे कि हर रेपिस्ट, हर इंसान रेपिस्ट नहीं होता ना, ऐसे हर कुत्ता पागल नहीं होता। अगर हर कुत्ता पागल होता तो हर इंसान को भी फांसी देनी चाहिए। अगर एक एक इंसान ने, एक मैंने किसी का मर्डर किया है और मुझे, ये मैंने किसी को बाइट किया है, राइट, मैंने किसी को बाइट किया है और मैं नुकसानदेह हूं ना, तो मेरा इलाज करने की बजाय सारे ह्यूमन स्पीशीज का इलाज करो, जैसे कुत्तों के साथ करते हैं। एक ने काटा, एक कुत्ते ने काट लिया, तो आप लोग ये बैकग्राउंड नहीं देखते कि कुत्ते को कुत्ते ने काटा क्यों है, कुत्ता थ्रेटन था, कुत्ता क्या था। आप लोग कुछ नहीं देखते। इवन कुत्ता भौंक रहा है, आप लोग कुछ नहीं देखते, आप उसके ऊपर पत्थरों की बरसात कर देते हैं। तो फिर इंसान के ऊपर भी हर इंसान में पत्थर की बरसात होनी चाहिए। ब्राउन कलर के कुत्ते बहुत होते हैं, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई किसने काटा, तो आप सारे ब्राउन कुत्तों को हटा देंगे, मार डालेंगे। इट्स नॉट, आई मीन इट्स नॉट इंटेलिजेंट टू डू दैट। अल्लाह मैंने कुत्ते को बनाया था तो क्यों बनाया था, उसको उसको सोचें, सर्च करें। अल्लाह ने भी क्रिएट की हुई कोई भी चीज फालतू नहीं है। हमारे कुत्ते इकोसिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा है, बिल्लियां इकोसिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा है, चूहे हैं, हाँ, ये छिपकलियां, तो है। अल्लाह ना करे नजर आए घर में, लेकिन छिपकलियां हैं, हर एक एक चीज। हाँ, नहीं, एवरीथिंग हैज अ रोल। ये तो है कि अल्लाह ने हर चीज जो है ना एक एग्जैक्टली, परफेक्ट पर्पस से बनाई है। तो मतलब वी जैसे कांट स्टार्ट हुआ, गोइंग अबाउट किलिंग देम। किसी चीज की जान क्यों लेना? एग्जैक्टली, इवन ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए आप लोगों ने बर्थ पिल्स करवाई, राइट। आपने ह्यूमंस को मारना क्यों नहीं शुरू कर दिया आबादी कम करने के लिए? कैन यू ऑल अग्री विद दैट? नहीं करेंगे। आप तो कहेंगे नहीं यार, ये कैसी बात कर रहे हैं, 5 बजे की जगह वक्फा करें, ये करें वो करें। जब ह्यूमन के लिए पिल्स हैं, आप लोग एफर्ट करते हैं, यू डोंट गो टू योर वाइफ्स, और अगर जाते हैं तो आप प्रोटेक्शन इस्तेमाल करते हैं, जस्ट टू हैव, यू नो, जस्ट जस्ट टू हैव नो मोर बेबीज। तो कुत्ते के लिए, किसी और क्रीचर के लिए क्यों नहीं? आपने उनके भी तो पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है ना। उनकी भी तो चीजें हैं, उनको तो पूरा ऑपरेट करते हैं, उनके तो पार्ट्स निकाल देते हैं। बिल्कुल। That's also not right, but that is worse. I mean, that is not that worse. वो इतना बुरा नहीं है कि आपने, मतलब आप उनको मार डालो। आप मारने से होना, यकीन करो, पॉपुलेशन खत्म नहीं होती। और हिस्ट्री इसकी वो है कि आप चूहों को मारेंगे, चूहे निकल के आएंगे। यू कैन नॉट फाइट विद अल्लाह, आप लोग नहीं एग्जैक्टली, कर सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, वैलिड तो पॉइंट। बेहतर यही है कि अल्लाह की चीज बनाई हुई हर चीज को लव करें। शुक्र अदा करें अल्लाह ने कुत्ते बनाए हैं, शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने डोंकीज बनाए हैं। अल्लाह का निजाम बहुत परफेक्ट। एक एक चीज, और इवन हमारी बॉडी में इतनी बारीक बारीक चीजें हैं कि अल्लाह में तो गलती तो खुदा ना खासा नहीं हो सकती ना। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हमें ये भी शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है, हमें इतनी नॉलेज, इतनी विजडम दी है, अकल दी है, तो यूज इट, डू राइट बाय अल्लाह, और याद रखें कि एट द एग्जैक्टली, एंड ऑफ द डे वी हैव टू आंसर टू अल्लाह फॉर इवन दीज काइंड ऑफ एक्शंस। अल्लाह पूछेगा कि क्यों आपने ऐसा किया, व्हाई डिड यू टॉर्चर बेजुबान जानवर। राइट, बिकॉज We देखो really should हर think कोई about their अपने, actions.
एग्जैक्टली हर कोई अपने अमल का जवाबदार है। मेरे पास 6 कुत्ते थे, उनमें से 4 कुत्तों को बल्दिया ने आके जहर दे दिया किसी की भी कंप्लेन के ऊपर। आई वोंट ब्लेम एनीबॉडी। जो है उनको अल्लाह मियां को खुद जवाब देना है। आई वाज क्रश्ड एंड आई रियली क्राइड अ लॉट। और उनके हाथ पांव बांध के उनको अपने आगे तड़पते हुए छोड़ देते हैं। देवर पपीज, 1 1 साल के 8 महीने के पपीज थे। जिसने भी किया गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर या जैसे भी, वो बंदा बच्चा नहीं था, ही वॉज अडल्ट। जिसको अपने अमल का जवाब देना है। और अल्लाह माँ बचाए हम लोगों को बेजुबान की आह से। हमें डर नहीं है, हमें डर नहीं है। और हमें डर होना चाहिए। डर पैदा करने के लिए या आई डोंट नो क्या चीज जरूरत है, लेकिन एक किस्सा है हारूत और मारूत का। 2 फरिश्ते थे अल्लाह मैंने जो जमीन पे उतारे थे। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग उनको उनका किस्सा देखें। अल्लाह मियाँ उसका कोई लुब्बे लबाब यही था कि अल्लाह से जो पर्दे में है ना, मतलब सॉरी, अल्लाह में जिनसे पर्दे में, अभी अल्लाह में हमसे पर्दे में है। हम लोग का, हमारे पास कोई नबी भी नहीं है, हम लोग तो बहुत ही बाप की कौम है। तो क्योंकि हमें पता है कि बाद में देखेंगे, हम तौबा कर लेंगे, माफी मांग लेंगे, हम गुनाह कर लेते हैं। अल्लाह से उम्मीद रखे कि अल्लाह हमें माफ करेगा। लेकिन अल्लाह किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करता, एक चूंकि के साथ भी नहीं करता। तो वी शुड हैव दैट फेयर। जो भी अल्लाह ने कुरान में लिखा है, और जो भी हुजूर पाक को ही देखना है, आप और कुरान को देखना है। आप सब अंबिया पे मर जाए, हम 100% नबी नहीं हो सकते। दैट्स ट्रू, हम बहुत गुनहगार लोग हैं। लेकिन जो चीज हमारे हाथ में है, टू बी काइंड विद ऑल क्रीचर, टू बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स ऑल क्रीचर्स, एटलीस्ट वो हमें करना चाहिए। उसमें जो है ना, कोई प्रैक्टिस को तरबियत की जरूरत नहीं है। Yes, very true. चलें फरजाना, it was a very very nice and enlightening discussion with you. Sadly हमारा पॉडकास्ट अब एंड पर आ रहा है, तो आई वुड रियली लाइक टू से कि जो है, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड वेरी एनलाइटनिंग, एंड आई होप हमारे लिसनर्स को कुछ मिला हो इसमें से, यू नो, टू लर्न टू इम्प्रूव देमसेल्व्स and become better people out there. इंशाल्लाह। Yeah. Is मैं there anything समझती हूँ else किसी you would एक want to say बंदे as a को भी, final note? I would like to thank you for giving me this opportunity to express whatever I have gone through. अगर एक बंदे का भी वो अगर पानी देना शुरू कर देता है किसी को पीने के लिए, मैं समझूंगी मेरी सक्सेस है। Okay. इंशाल्लाह। That was so nice. Thank you so much for your time, Farzana. थैंक यू सो मच मुना, Take थैंक care. यू, टेक केयर, Allah Hafiz. बाय। Bye.